So, good morning, everyone. So we are going to be discuss a new method for which is used to be calculate the slope and deflection in any cross section of the beam, and that method is area moment method. So this method having some another way to solve the problem of slope and deflection. So in this first thing, the prerequisite for this method, you have to be know about, you have to be draw the bending moment diagram of given beam first. This is the prerequisite for this. It means that, dear student, you have to be study first the shear force and bending moment while go for this method. So let's discuss this method. It's not too much. So let's see this method, area moment method. Let's try to be understand this method. So slope and deflection at any section of beam can be obtained by, there is a 2 points A and B is there. So area of that is the area of bending moment diagram which directly give you the slope. It means the area of bending moment diagram give you the slope, and first moment of area of bending moment diagram gives the deflection. So this is a beam which is subjected to load W1 and W2 at a given point on the beam, and for that we have assumed that in this case, suppose this is the bending moment. This is a diagram for the bending moment. So this is, then we have taken two section, y y1 y1 and y2 y2 at a distance x1 and x2 respectively from support A. And so this area which comes under these two sections there, we shaded by this color. You are seeing that this color we have shaded, which comes under the section y1 y1 and y2 y2, and which is having distance at x1 and x2 from support A. Now, for solve this problem, we have to be take a strip, elementary strip is there. We have taken, which is shown in that maroon color, or you can say that is reddish maroon color. So here we have taken elementary strip, and this elementary strip having the thickness dx, having the thickness dx, which is located at a distance x from the support A. Now we are assume that this area which we have considered for our analysis, A, B, C, D, E, and F. You can see you start with here A, B, C, D, E, F. This area, so this area having some center of gravity of this area, suppose is acting this place. This small dot is given where we have supposed that the center of gravity of area A, B, C, D, E, F is acting. So we are assume that the distance of this center of gravity from support A is x bar. So this is the method of area moment. So we have to be start like this. So हमने सारा कुछ आपका अरेंजमेंट कर लिया. We got the bending moment diagram. We have got the bending moment diagram. We have taken two section.
that is by 1 by 2 by 2, and within that section which area comes, we are taken this area for the analysis, and we are assumed that one strip is there which is located at distance x from the support, and we are assumed that the center of gravity of this particular area a b c d e f lie at this point, and it is located at the x bar at the support ए सो ये ये चीज आपको समझ में आ चीज आप दिमाग एक थोड़ा सा रखिए कि अब जो कैलकुलेशन हमको करना है विद इन द एरिया x1 एंड x2, और वी कैन से इट इज ए स्टार्ट फ्रॉम this point a, this point a b c d e f and till the this line, this section. So in other words we can say, so we have to be made do the calculation within two. First limit this x by one by one, and second one is a y2 y2. So this is the problem. So one thing you are try remember in the time in the area moment method, the area of bending moment diagram give you slope directly, and the first moment of that area will give you of bending moment diagram give you deflection. सो अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमको उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा, बिना एरिया के काम नहीं होना है, क्योंकि एरिया निकालोगे तो यू विल गेट द स्लोप, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द that distance, so it will become the moment. So area moment of this area that give you the directly deflection. So we all know that the equation of curvature or moment is, or differential equation of bending is ei d square y upon dx square is equal to a. ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपने कल ही 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है. चलिए अब हम इक्वेशन नंबर ये जो है आई इक्वेशन जो ये है डिफरेंशियल बेंडिंग इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम दोनों साइड dx का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से अलाउ करता है. आपने दोनों साइड dx को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. देन m dx of is area bending moment diagram over the small length dx in the figure. आप समझिए इसको, जो m dx है, m dx m तो पूरे का है इसका, और उसमें से आप छोटा सा ये dx वाला पार्ट निकाल लिए, तो ये इस एलिमेंट्री एरिया इस छोटू का इसका एरिया बन जाएगा, वो वही चीज है. ये देखिए, तो m dx is the area bending moment diagram over the small length dx shown in the figure. अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 को. कहाँ से लिमिट स्टार्ट करेंगे, हमने लिमिट पहले डिफाइन कर ली, कहाँ से देखिए जरा इसको डायग्राम को, यहाँ से x1 to x2, ये यहाँ से x1 है, यहाँ से इंटीग्रेट करना है अपने को, यार हम सिर्फ इस एरिया की बात करेंगे a b c d e. चलिए अब आप आते हैं. सो हमने x1 to x2 से उसको इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या मिलेगा, एक बार आप जैसे ही ei कांस्टेंट है तो d स्क्वायर बाई अपन dx स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट dy अपन dx x1 to x2 एंड this become mx x1 to x2. ठीक है. अब you just now we are going to discuss this part only, dy upon dx, where dy upon dx x1 to x2 is equal to, what is dy upon dx? dy upon dx is nothing but slope. कहाँ पर slope? One is the slope at x2 minus slope at x1. The meaning of that, ये आपको समझ में आया. चलिए अब आगे चलते हैं. अब जो mx x1 to x2 क्या है, m क्या है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस एरिया, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट है उसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो दिस इज एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द y1 टू y2, वो उसका एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है.
बिटवीन टू लिमिट जो तुमने पहले ले लिया। तो हम इसको रिडिफाइन करते हैं, जो इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, गलती से 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंसिडर करो। तो इसको रिडिफाइन करते हैं। आइए यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखा ई आई आई टू माइनस आई वन, वेयर आई वन इज डियर, हम उसको डी वाई अपॉन डी एक्स को आई मान लिया। तो आई टू माइनस आई वन मीन्स द स्लोप एट सेक्शन 2, जो आप बाई टू लिए हो वहां, एंड स्लोप एट सेक्शन 1। आई वन आई टू इज स्लोप, आप कंफ्यूज मत हो, चाहे साइड में लिख लो अपनी कॉपी में, इट इज ए स्लोप, यहाँ पर लिया उसको स्लोप है वो। एंड यहाँ पर एम एक्स वन एक्स टू को डायरेक्ट लिख दिया, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द गिवन लिमिट, जिस दो लिमिट की आप बात करोगे। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्टली यू आर एबल टू कैलकुलेट द आई वन एंड आई टू मीन स्लोप। सो पहले ही लिखा था द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन कंसिडर्ड एरिया विल गिव यू द डायरेक्टली स्लोप। ई आई कॉन्स्टेंट है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द इक्वेशन नंबर 1 में नाउ वी आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स ऑन द बोथ साइड। ये तो हम कर ही सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 चलो आप देखते हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर, नहीं ये वाली, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको जो पहली इक्वेशन है ई आई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, इसमें दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, एक्स डी एक्स का। ठीक है, एक्स डी एक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अलाउ करता है अपने को, हम कहीं भी दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई या गुणा भाग कुछ दोनों साइड कर सकते हैं। तो कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया x1 टू x2 के बीच में, वो भी हम कर सकते हैं, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, जो ये पहला वाला टर्म है, ये देखिए डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना आपको आता है, ये बाई पार्ट वाले से होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जिसमें फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। तो आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से जब आप इसको डियर स्टूडेंट इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, सो यू विल गेट दिस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एंड आप लिमिट लगा दीजिए, जो लिमिट है x1 टू x2, और दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, ये है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बिटवीन द गिवन सेक्शन फ्रॉम ए। ये फर्स्ट मूवमेंट हो गया। एम डी एक्स, ये तो पूरा एरिया, उस एरिया को जो लिया है, लिमिट ले लिया एम डी एक्स और एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया, तो इट्स बिकम द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बिटवीन सेक्शन, जो सेक्शन आपने लिया हुआ है। यही वो तो कहना चाह रहा था। सो हम ये बोल सकते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये पूरे एरिया को मान लिया, जो ये एरिया इधर आओ, इधर सब जो इस पूरे एरिया ए बी सी डी ई को हमने स्मॉल ए मान लिया, और इसका सी जी जहाँ ऐड करेगा वो उसकी डिस्टेंस। ओबियसली जब भी किसी एरिया का मोमेंट लोगे आप, तो उसका सी जी से ही लेना पड़ेगा डिस्टेंस, ये अभी आप पढ़ते आए हो। तो सी जी के लिए तो यहाँ आइए, यहाँ इस पार्ट पे, सो दिस रिलेशन बिकम, अब आप लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर की रखेंगे तो ये x2, और इस dy अपॉन dx को हमने i2 ले लिया, स्लोप एट 2 माइनस y2 सेकेंड पोजीशन पे, हर चीज सेकेंड पोजीशन पे y2 हो जाएगा ये, एंड माइनस x1 i1 माइनस y1 सेकेंड लिमिट रखने पर। हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो ई आई, तो ये एक रिलेशन मिल गया, इनटू हमने इस वाले इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 एम डी एक्स को हमने है, वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके एरिया को, जिसको जहां पर आप एनालिसिस कर रहे हो, वो ए बी सी डी ई एफ, और मल्टीप्लाई बाय दिस x मीन्स उसका ये, उसकी सी जी का डिस्टेंस, तो a इंटू एक्स बार, वेयर a इज द एरिया ऑफ डायग्राम, कौन सा एरिया, a b c d e f, एंड x bar is distance of CG of diagram A B C D E F. So now dear student, you have two relation to getting the slope and deflection at a moment at any point at given 2 point in the any questions.
by using the moment area moment method. So one equation is the EI I2 minus I1 area of bending moment diagram, and दूसरा है EI x2 x1 minus y2 minus x1 I minus y1 x bar. ठीक है, तो ये इन दोनों रिलेशन को यूज करके आपको न्यूमेरिकल लगाना है. अब चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं. अब आपको थोड़ा समझ में आएगा यहाँ से कि इसमें क्या आपको करना है. छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, अपन देखते हैं इसको. देखिए, अ सिंपली सपोर्टेड बीम, लेंथ ऑफ द बीम इज गिवन L, carries UDL uniformly distributed load of intensity W per length throughout the length. Determine the slope at A पॉइंट ये दिया हुआ है, द स्लोप एट A एंड डिफ्लेक्शन एट C मतलब बीच में आपको डिफ्लेक्शन निकालना है और इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है बाय मोमेंट एरिया मेथड. और जितना पूछा है उतना ही करना है, ज़्यादा पूरा नहीं करना है. सो अब सबसे पहले तो जो बीम डायग्राम, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आपको, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो whenever the any beam is subjected to uniformly distributed load, उसका और इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनता है. ठीक है, इस तरह से बनता है एक डोम के शेप का. अब हमको दो जगह सिर्फ कैलकुलेशन करना है, एक ए पे और एक सी पे. ठीक है, तो हम हमसे और किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतना इधर कंसंट्रेट करना है इस जगह पे. और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसका फॉर्मूला होता है WL²/8. ये आप याद कर सकते हो. ठीक है, WL²/8 ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट व्हेन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको वही चाहिए ना. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब आपको ये C से C डैश जो है ये मिल गया, ये डिफ्लेक्शन मिल गया जो बीच पे है एग्जैक्टली हियर. तो ये वाला पार्ट आपको C से C डैश की डिस्टेंस मिल गई. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब ये. ठीक है, अब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम A to C. अब हमको यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना पड़ेगा, बिना एरिया के काम चलने वाला नहीं है. सो ये इधर ये क्या पैराबोला का एक पार्ट है और इधर ऐसा. तो ये इस केस में एरिया के लिए फॉर्मूला है 2/3 दिस C1 C ये वाला और AC. तो देखिए जरा यहाँ पर ये C1 और C ये है WL²/8 और दिस पार्ट AC जो है वो L/2 है. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी जाएगा WL³/24. अब आपको इस एरिया ACC डैश का एरिया मिल गया. दैट एरिया इज डिफाइंड बाय WL³/24. अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? EI इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों सेक्शन के बीच में आपको निकालना है डियर स्टूडेंट, इन दोनों सेक्शन के बीच में. सो आप कर्स कैसे निकालोगे, कैसे निकालते थे? जो बाद वाला है तो वो पहले क्या आता था I2 माइनस I1, तो यहाँ पर हो जाएगा IC माइनस A. जिस दो सेक्शन की बात करोगे उस सेक्शन को यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा. तो EI IC माइनस IA slope at C slope at A is equal to WL³/24 means area of bending moment diagram or area or which we have taken which area, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया ये आ गया. अब स्लोप एट सेंटर, जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहां स्लोप 0 होता है, ये आपको पता है. तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो स्लोप 0 होगा. सो स्लोप एट सेंटर इज 0. तो स्लोप एट सेंटर जब 0 हो गया तो मतलब IC इज 0 हियर. तो नाउ IA इज इक्वल टू माइनस WL³/24 EI. यही आपको निकालना था. A पे आपको स्लोप निकालना है, C पे डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन एट द C. तो चलिए स्लोप मिल गया, IA इज इक्वल टू माइनस WL³/24 EI. अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो है आपको पता है क्या होता है ये. अब
टू की जगह फॉर्मूले में टू की जगह सी ले लेगा और वन की जगह ए ले लेगा। तो ई आई एक्स सी आई सी माइनस वाई सी एक्स ए आई ए माइनस वाई ए एक्स बार एस बार क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन एरिया। और इस एरिया तो आपको पता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24। अब ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अगर ये एक डोम सेव है तो इसका सी जी इस इस डायरेक्शन से क्या होगा, वो सी जी है 5L/16, वो उसका फॉर्मूला होता है। जैसे ट्रायंगुलर का आपका पता होता है h/2, और स्क्वायर का आपका का भी जो भी उसकी हाइट है उसका बाई 2, ट्राइंगल का आपका h/3। वैसे ये जो शेप है, एक साइड कर्व और दो साइड सिंपल, वो उसका जो सी जी का फॉर्मूला 5L/16। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट 5WL की पावर 4 384। अब देखिए बट एक्सी क्या है, L/2। एक्सी देखो जरा, एक्सी क्या है, L/2। एक्स यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, L/2 के बराबर। तो एक्सी इज इक्वल टू L/2, और वहाँ पर आई सी पर जो स्लोप वो जीरो है, अभी पता है जहाँ पर डिफ्लेक्शन में एक्स है वहाँ पर स्लोप जीरो होगा। अब एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स ए तो जीरो है ना, यहाँ पर तो जीरो हो गया, तो एक्स ए जीरो, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग किया है तुमने। सो एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स ए पर, और जहाँ भी आपको पता है स्लोप, जहाँ पर सपोर्ट होता है वहाँ पर डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। सो अब सब के सब जीरो हो गए तुम्हारे इधर। अब एक एक्स एक्स सी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक्स ए, ये वाला पूरा जीरो हो गया, वाई जीरो, तो ये पूरा टर्म गया। और यहाँ पर ये ये वाला पूरा जीरो हो गया, सिर्फ बचा वाई सी। तो ई आई माइनस वाई सी इज इक्वल टू दिस, एंड टोटल वाई सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 384 EI. So this is the formula of deflection at the middle of the beam. So simply this is the way to solve using the moment of area method. This is one of simplest method you can use. So hope you are understood. Thank you so much for listening.